Hello dear students, welcome in this YouTube channel. This is case study based question and is taken from class 9 chapter quadrilaterals. So let's see what is in the question. During maths lab activity, each student was given 4 broomsticks of length 8 centimeter, 8 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter to make different types of quadrilateral. Okay, so using the above information, answer the following questions. So first is how many quadrilaterals can be formed using these sticks? So there are 4 sticks. एक है 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की. ओके, इन 4 स्टिक्स को लेके कितनी क्वाड्रिलेटरल्स आप फॉर्म कर सकते हो? ओके, सो देखिए सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल भी फॉर्म कर सकते हो, है ना. 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सो एक रेक्टेंगल भी बन जाएगी. उसके बाद एक पैरेललोग्राम भी आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो एक पैरेललोग्राम भी बन जाएगी. फिर उसके बाद एक काइट भी आप फ्रेम कर सकते हो. देखो सी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, काइट भी बन जाएगी. सो दीज 3 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी कैन फॉर्म बाय यूजिंग दीज 4 sticks, राइट. सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. Only one, no. Two, no. Three types of quadrilaterals can be formed. So ये 3 तरह के quadrilaterals हम फॉर्म कर सकते हैं. कौन कौन सी बताई? Rectangle, parallelogram and kite. Next question is name the type of quadrilaterals formed. So I told you rectangle, parallelogram and kite. So first option is correct here. So what is next question? Let's see. In a trapezium ABCD, DC parallel to AB. So this DC is parallel to AB given. A angle is and B angle is 45 degree. So this is 45 degree given. This is 45 degree given. The teacher asked the students to find angle D. So Naresh answered it is. So D angle we need to find out. So देखो अगर ये 45 degree है तो D निकालना है. You know these two lines are parallel, AD is transversal. So these two angles are consecutive interior angles, co-interior we speak. So इनका sum जो है वो 180 degree होता है. Okay, so what is the D? D will be 180 minus 45. So that is 135 degree. So let's see which option is correct. 135 degree. So C option is 135 degree. So let's see the next question. While discussing the properties of a parallelogram, a teacher asks about the relation between two angles x and y of a parallelogram as shown in figure. The teacher gave them 4 options where BC is greater than CD. So BC जो है, sorry, BC is less than CD. BC जो है वो CD से छोटा है, CD बड़ा है, ठीक है. This is your angle x given, this is your angle y given, ठीक है. तो अगर ये एंगल y है बच्चों, ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर इक्वल बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सो आपको बोला है BC जो है दैट इज लेस देन CD. CD इज बिगर साइड. सो आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू द बिगर साइड इज बिगर एंगल, और लॉन्गर साइड के सामने जो एंगल होता है वो लॉन्गर ही होता है, ठीक है. तो देखो ये है बड़ी साइड, ये है छोटी साइड, ठीक है. तो बड़ी साइड के सामने इस ट्रायंगल में CBD ट्रायंगल में बड़ी साइड के सामने का एंगल कौन सा है? Y एंगल. और छोटी साइड के सामने का एंगल कौन सा है? छोटा एंगल X. तो CD इज बिगर तो एंगल Y इज बिगर, because we have read this property, angle opposite to the longer side is a bigger angle and angle opposite to the smaller side in a triangle is smaller angle. So अगर CD side बड़ी है तो CD के सामने का एंगल भी बड़ा होगा. BC साइड छोटी है तो BC के सामने का एंगल भी छोटा होगा. So it means Y is greater than X, or you can say X is less than Y. Okay, so X is less than Y. B option is correct here. So I think this property is not there in the syllabus of 2020-21 syllabus. Okay, but for other sessions it will be there. So no problem, you can remember this property. So next question is PQRS are respectively the midpoints of sides AB, BC, CD and DA of quadrilateral ABCD. So first of all let's make a quadrilateral ABCD. ABCD एक quadrilateral है.
जिसके जो P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, एंड DA जो है वो S जो है वो DA का मिड पॉइंट है। सो हमें PQRS क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आगे बोलता है AC इज इक्वल टू BD। जो AC डायगोनल है ना वो BD डायगोनल के बराबर है। अब बच्चों डायगोनल्स बराबर कौन सी क्वाड्रिलेटरल के होते हैं? नंबर 1 रेक्टेंगल के होते हैं, नंबर 2 स्क्वायर के होते हैं। ओके, बस इन दोनों के होते हैं। तो मतलब ABCD या तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है। बट आगे बोलता है AC जो है वो परपेंडिकुलर भी है BD के। अब डायगोनल्स इक्वल तो हैं बट आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो परपेंडिकुलर डायगोनल तो बेटा एक स्क्वायर के होते हैं, एक रोम्बस के होते हैं। तो रोम्बस तो ये हो नहीं सकता है, तो स्क्वायर इज दिस। सो इट मींस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर बन गया ये, है ना, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल भी हैं, 90 पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 पे काट रहे हैं सपोज। तो दिस इज अ स्क्वायर। सो आपको पता है स्क्वायर जो है ना उसके जो साइडों के मिड पॉइंट्स है ना उनको जो हम ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बीच में बनती है वो भी स्क्वायर ही बनती है। ठीक है, यू रिमेंबर दिस। तो ये स्क्वायर ही बनेगी। स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर, उसके साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो भी एक स्क्वायर बनती है। ओके, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक रोम्बस दिया है, रोम्बस के जो मिड पॉइंट्स हैं साइडों के उनको ज्वाइन करके जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बनती है ना ये, तो ये होती है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनती है वो क्या बनती है? वो रोम्बस बनती है। ठीक है, देखो रोम्बस की मिड पॉइंट साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो बनती है वो रेक्टेंगल बनती है, और जो रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनती है वो रोम्बस बनती है। और स्क्वायर्स की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके स्क्वायर ही बनता है। तो ये आप याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज जाननी है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल सेंड यू द वीडियोज, और आई विल tag this video in the description if you need them. Okay, so write in comment if you need this video. I'll tag this video, I'll paste this video in the that description and you can go to that video, because उस वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करा है कि कितनी टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये 10-15 मिनट्स का वीडियो है, अगर अच्छे से आप देख लोगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई और डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, कमेंट, सो आई विल बी श्योरली हेल्पिंग यू। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.